वेटिंग फॉर मोर. ओके फाइन. तो मैंने नोट्स आप लोगों को पहले भेज दिए थे सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स के. पढ़ लिए आप लोगों ने? Yes, ma'am. ओके ओके. So we'll start with the topic. So today's topic is cerebrovascular accident. CVA is the medical term for stroke. A stroke is decreased blood supply to the part of brain due to blockage or rupture of any kind of blood vessel causing cells to die. मतलब what is CVA? CVA is otherwise known as stroke. A stroke is a decreased blood supply. मतलब if there is any type of blockage, any of rupture in the blood vessel, that will leads to stoppage or that will lead to decrease in blood supply to the brain. And if there is decreased blood supply in the brain, that will leads to necrosis of the brain cells, which ultimately leads to death of the brain cells. And if there are death of the brain cells, जो हमारी brain को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ब्लड प्रोवाइड करते हैं फॉर फर्दर growth and development and for maintaining the body's function, that is known as stroke. So what is stroke? Stroke, or otherwise in medically it is known as CVA, is the medical term for stroke. A stroke is decreased blood supply to the part of brain due to blockage or rupture of a blood vessel causing cells to die, brain cells to die. Or CVA is any functional abnormality of the central nervous system that occurs when the normal blood supply of the brain is disrupted. This is the simple definition. What is CVA? CVA is any functional abnormality. हमारे ब्रेन का क्या फंक्शन होता है? ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, फिर ब्रेन में पोन्स होता है, मेड्यूला होता है. ये दीज आर द टाइप्स, नॉट टाइप्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन विच आर फंक्शनिंग वेरी डिफरेंटली फ्रॉम ईच अदर. तो सारे जितने हमारे ब्रेन के पार्ट्स होते हैं उनका डिफरेंट फंक्शन होता है. कोई ब्रेन के कोऑर्डिनेशन को मूवमेंट करता है, कोई बॉडी के सिस्टम्स के वर्किंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कोई उनका वर्किंग फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है, कोई हमारे बॉडी का जो ब्रेन का पार्ट है वो मेमोरी स्टोर करने के लिए, मेमोरी को रिकॉल करने के लिए काम आता है. So what is CVA? CVA is any functional abnormality of the central nervous system that occurs when the normal blood supply to the brain is disrupted. Fine. Then risk factors. Risk factors are of two kinds: non-modifiable and modifiable. So non-modifiable means you cannot modify. Age you cannot modify. If a individual is of 65 age, their age is progressive, not decreasing. Their age is progressive. मतलब उनकी एज 65 है तो 66 होगी, 67 होगी, but we cannot change the age. So non modifiable मतलब you cannot modify the risk factors. तो non modifiable risk factors are age. Patients or person who are above age 65 years, they are very prone to develop cardiovascular accidents, because जैसे जैसे एज प्रोग्रेसिव होगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देते हैं, काम करना डिक्रीज कर देते हैं. तो while a patient is gaining age or their age is getting increased, there will be chances of getting so many blood disorders, so many functional disorders, so many other nutritional disorders they are getting. So patients who are above age 65, they are very prone to develop CVA. Then gender, you cannot change gender, so more in men and less in women. Then race, African Americans are having more CVA attacks. Then family history, you cannot change family history. तो अगर किसी की फैमिली में ऑलरेडी हिस्ट्री है, डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन का हिस्ट्री है, या फिर कोई भी ऑटो इम्यूनिटी का हिस्ट्री है, तो दे कैन बी again traveling to the next generation also. Then modifiable risk factors, you can modify or you can change with time, you can change with lifestyle, you can change with medications. So modifiable risk factors are hypertension, heart disease, smoking, excessive alcohol consumption, obesity, sleep apnea, metabolic syndrome. So did I teach you metabolic syndromes in that is in second year. I have taught metabolic syndrome in second year. What is metabolic syndromes? Metabolic acidosis, metabolic alkalosis, क्या होते हैं ये, और what are the three important features they have? Metabolic syndrome, because if you know metabolic syndrome, you can easily understand cardiovascular accidents. Anybody?
मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस एसिडोसिस। डोंट टेल मी कि आप लोग को नहीं पता है। Am I audible? हेलो, एनीबडी प्लीज आंसर। अगर पता ही नहीं चलेगा कि मैं आपको सुन रही हूँ या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो तो पता कैसे चलेगा? मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। हेलो, यस मैम। एम आई ऑडिबल? ओके, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का तो प्लीज़ से कि मैम नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा फिर। और अगर आपको मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगी तो आप ये सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स नहीं समझ पाओगे। फाइन, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्किलोसिस आर टू काइंड्स ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इन विच हमारी बॉडी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा बाइकार्बोनेट, एक होता है हमारा पीएच लेवल और एक होता है हमारा क्लोराइड्स। फाइन, तो ये क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट हमारे रेस्पिरेशन में, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, फिर वो लंग्स में एल्वियोलर बेड्स के नीचे वो एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज प्रोसेस इज बीइंग मेंटेन्ड बाय बफर सिस्टम, और वो बफर सिस्टम को मेंटेन करने का काम होता है बाइकार्बोनेट्स का एंड क्लोराइड्स का। एंड विद दीज बाइकार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स आर बॉडीज पीएच लेवल इज गेटिंग बैलेंस्ड। ना तो बॉडी में एसिडोसिस होने देता है, ना ही बॉडी में एल्किलोसिस होने देता है, क्योंकि अगर कंप्लीट बॉडी में एल्किलोसिस होगा तो जहाँ पर एसिड की नीड है वहाँ फंक्शन ठीक नहीं होंगे, जहाँ एल्केलाइन की ज़रूरत है वहाँ एसिडोसिस है तब भी फंक्शंस प्रॉपर नहीं होंगे। सो बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड आपका पीएच इज मेंटेन्ड बाय बफर सिस्टम, और दैट बफर सिस्टम इज नोन एज पीएच मेंटेनेंस बैलेंस। फाइन, तो ये हमारा होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी भी इंडिविजुअल को है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के केसेस जो होते हैं, जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, लंग कोलैप्स हो गया, एम्फाइसीमा हो गया, निमोनिया हो गया, पेशेंट ऑन वेंटिलेटर्स हो गया, जो सीवियर टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए पेशेंट्स वेंटिलेटर्स पे होते हैं, अगर उन लोगों में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस है तो बॉडी पेशेंट वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, ना या तो हाइपोवेंटिलेशन होगा या हाइपर वेंटिलेशन होगा। अगर पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है तो पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होगा, एंड इफ देयर इज हाइपोवेंटिलेशन तो पेशेंट को कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिसिटी होगा। तो पेशेंट का जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा और पेशेंट की बॉडी के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस होंगे, डिफरेंट मेटाबॉलिक सिस्टम चेंजेस होंगे। तो दिस इज योर मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एंड इफ देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन यू आर टेकिंग फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम द एनवायरमेंट, already your body is suffering with cardiovascular accident, or already your body is suffering with any type of blockage or rupture in the blood vessel, it will further leads to decreased blood supply to the brain, which can ultimately leads to brain stroke and brain dead. Patient will be brain dead. समझ आया metabolic syndrome why it is very important? समझ आ गया? दोबारा समझाऊं? दोबारा बताऊं या समझ आ गया है? Okay, fine. Okay, so modifiable risk factors are hypertension, patients who are hypertensive, then heart disease, smoking, excessive alcohol consumption. Alcohol consumption का CVA से क्या relation है? Alcohol consumption और diabetes का CVA से ये relation है कि when a person is excessively taking alcohol, तो what is alcohol? Alcohol is excessive amount of glucose. तो ग्लूकोज की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो मसल रिलैक्सेशन में काम करता है। जब मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो पेशेंट विल बी इन द रेस्टिंग सिचुएशन, और पेशेंट जब रेस्टिंग सिचुएशन में बॉडी आइडेंटिफाई करती है पेशेंट को कि द पेशेंट इज़ इन रेस्टिंग सिचुएशन, तो वो ब्लड सप्लाई और जितने सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, मैकेनिज्म, मेटाबॉलिज्म, सिंथेसाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, वो सारे के सारे फंक्शंस आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो ड्यू टू ग्लूकोज देयर इज relaxation in the muscles, and due to relaxation in the muscles brain identifies the body differently, that
द बॉडी इज़ इन रेस्टिंग कंडीशन, तो जितने सारे हमारे नॉर्मल बॉडी के वाइटल साइंस होते हैं वो सब डिक्रीज हो जाते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन वाइटल साइंस देयर विल बी डिक्रीज इन ब्लड फ्लो. जब ब्लड फ्लो कम होगा तो ब्रेन तक, नॉर्मल फंक्शनिंग में भी ब्रेन तक ऑक्सीजन ब्लड फ्लो कम जाएगा. जब ब्लड फ्लो कम होगा तो सेल्स विल गेट लेस ऑक्सीजन एंड लेस ब्लड विच लीड्स टू ब्रेन सेल डैमेज. फाइन. तो ये होता है एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशन में. तो हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया. ओबेसिटी का रीज़न ये होता है कि ओबेसिटी की वजह से जो हमारा ब्लड का विस्कोसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है. ओबेसिटी में क्या होता है, बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन होने लगता है. एंड व्हेन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फैट इन द बॉडी इट विल गेट डिजॉल्व इन द ब्लड. एंड व्हेन द ब्लड इज एक्सेसिव इन फैट्स या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो जाता है, दैट टाइम द ब्लड विस्कोसिटी इज डिक्रीज. और जब ब्लड की विस्कोसिटी नॉट डिक्रीज, इट इज इंक्रीज. व्हेन द ब्लड विस्कोसिटी विल इंक्रीज द ब्लड विल फ्लो वेरी स्लो. विस्कोसिटी का मतलब आपको पता है क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो. द एबिलिटी टू फ्लो, तो दैट इज नोन एज ब्लड विस्कोसिटी. ब्लड का विस्कोसिटी जब इंक्रीज हो जाएगा तो दैट विल लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड का फ्लोइंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा. तो दैट इज द रीज़न वाई ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर इन CVA. स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया का भी सेम रीज़न है कि ड्यू टू रेस्टिंग कंडीशन पेशेंट विल बी हैविंग डिक्रीज्ड सप्लाई टू द ब्रेन. देन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पुअर डाइट, ड्रग अब्यूज़ एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या काम करते हैं, बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से देयर आर चेंजेस इन ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन. देन नेक्स्ट आते हैं हम कॉजेज़ के ऊपर. ये तो आपके रिस्क फैक्टर्स थे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज़. रिस्क फैक्टर मीन्स कैन बी एसोसिएटेड एंड कॉजेज़ मीन्स डेफिनेटली दे आर डूइंग द डिजीज कंडीशन. तो रिस्क फैक्टर्स आर कि इट मे कॉज द डिजीज. फाइन. हमें 50-50 चांसेस हैं कि दिस कैन और दिस मे कॉज द डिजीज, बट कॉजेज आर डेफिनेटली दीज आर द रीजन्स द डिजीज कंडीशन इज हैपनिंग इन द बॉडी. डिफरेंस समझ आ गया? ओके, आप लोग जवाब ही नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी. फाइन. देन कॉजेज इंक्लूड्स वेसल वॉल एम्बोलस, यानी कि जितनी भी आर्टरीज हैं, जितनी भी वेसल्स हैं जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, उनमें से किसी के अंदर एनी टाइप ऑफ एम्बोलस, वो एयर एम्बोलाई हो सकता है, वो फैट एम्बोलाई हो सकता है, वो ब्लड एम्बोलस हो सकता है. देन कार्डियक डिसऑर्डर्स. अब कार्डियक डिसऑर्डर्स में क्या क्या है, मिट्रल वॉल्व स्टीनोसिस. स्टीनोसिस मीन्स आपकी दो वॉल्व्स होती हैं, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड. बाइकस्पिड वॉल्व इज अदरवाइज नोन एज मिट्रल वॉल्व. मिट्रल वॉल्व स्टीनोसिस का मतलब नैरोइंग. तो अगर मिट्रल वॉल्व स्टीनोसिस हो जाएगा, यानी कि मिट्रल वॉल्व में नैरोइंग हो जाएगी, तो प्रॉपर अमाउंट फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स में सप्लाई नहीं होगा. तो इफ़ देयर इज मिट्रल वॉल्व स्टीनोसिस, स्टीनोसिस मीन्स नैरोइंग. देन मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स. अगर मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो गया, द पैपिलरी एडी में जो हैं वो जो हमारे कॉर्डेट टेंडिने हैं, जो हमारे मिट्रल वॉल्व को एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व को अपनी प्लेस में अटैच करके रखते हैं, अगर उनमें डैमेज हो गया है तो दैट विल लीड्स टू प्रोलैप्स ऑफ द मिट्रल वॉल्व विच लीड्स टू एबनॉर्मल ओपनिंग ऑफ द मिट्रल वॉल्व विच लीड्स टू डिक्रीज सप्लाई ऑफ ब्लड टू द होल बॉडी. देन calcified mitral annulus. Annulus means opening. Calcified mitral annulus means if there is calcification or any abnormal accumulation of calcium in the mitral annulus will leads to decreased opening of the mitral valve. Then ventricular aneurysm. I know आपका aneurysm complete हो गया है. तो aneurysm क्या होता है? What is aneurysm? ये टॉपिक तो भैया आप लोग का हो चुका है एन्यूरिज्म. फिर व्हाई कांट यू गिव आंसर्स? एन्यूरिज्म मीन्स एबनॉर्मल बल्जिंग इन द ब्लड वेसल्स. तो वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म इज अ रीजन.
Then atrial or ventricular clot, any blood clot in atrial or ventricular septums. Then atrioventricular septal defect, AV septal defect. अगर किसी भी बेबी, ज़्यादातर ये हम बेबीज़ में देखते हैं, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है ASD VSD. तो these are the causes. Then intracranial artery thrombus, aortic arch atherosclerosis. And what is atherosclerosis now? ये तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कार्डियक सिस्टम में. What is atherosclerosis? Formation of plaque. Formation of plaque. Okay, so in aortic arch atherosclerosis can lead to decreased blood supply from aorta to the whole body. You know cardiac system का function कैसे होता है? Blood supply का process you know from your inferior vena cava, posterior vena cava and coronary sinuses के through पूरी body का blood collect होता है. That will comes to the right atrium. After coming from to the right atrium, it will go to the right ventricle through tricuspid valve, and through pulmonary artery it will go to the lungs for oxygen purification or exchange of gases. When exchange of gases happen in lungs, then it will return back through pulmonary vein to the left atrium, then through mitral valve or bicuspid valve it will go to the left ventricle, and after the left ventricle through aorta it will go to the whole body. So this is the normal function of the blood pumping and normal exchange of gases in the lungs. This is the normal flow of blood. Fine. So if there is aortic arch atherosclerosis, it will lead to decreased blood supply from left ventricle to aorta and from aorta to the whole body. Then hypotension with carotid stenosis. तो हमारे ब्रेन को कौन सा आर्टरी सप्लाई करता है ब्लड? कैरोटिड आर्टरी. तो when there is stenosis or narrowing of the carotid artery, और narrowing क्यों हो रहा है? Due to atherosclerosis or due to any thrombus formation, due to any emboli, due to any plaque formation, or due to aneurysm, or due to rupture in carotid artery. तो hypotension with carotid artery stenosis. तो these are the causes. Causes are vessel wall embolus. emboli और thrombus में आपको difference पता है? What is the difference between thrombus and emboli? मैंने आपको नोट्स पहले ही भेजे थे, इसीलिए पहले भेजे थे ताकि आप लोग आंसर करो. एम्बोलाई एंड थ्रोम्बस में व्हाट इज द डिफरेंस? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड मी? मैं क्या पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आपको समझ में नहीं आता हो? आई नो दीज क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट दैट इंटरेक्टिव, बट फिर भी आपको पहले से नोट्स इसीलिए प्रोवाइड कराए गए थे ताकि आप उनको पढ़ के जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको थोड़ा पूछोगे, थोड़ी क्लास इंटरेक्टिव होगी, इंटरेस्टिंग होगी. बट आप लोग तो बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हो नोट्स होने के बाद भी. डू यू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन एम्बोलस एंड थ्रोम्बस? इफ येस प्लीज टेल मी. इफ नो देन टेल मी नो मैम वी डोंट नो, बट एटलीस्ट आंसर. मैम एक्चुअली इससे पहले भी क्लास में तो हम लोग नोट्स नहीं देख पाए. नोट्स नहीं देख पाए? ओके, सो एटलीस्ट टेल मी कि मैम नहीं पता है. यू नो आप लोग को एक चीज़ पता है, अगर वैसे तो आई नो कि आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आंसर पता होता है लेकिन वो आंसर नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका क्यूरोसिटी लेवल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ मुझे सिर्फ एक आंसर पता है, बट हो सकता है कि कोई और बच्चा या हमारे जो टीचर हैं वो कोई दूसरा आंसर बता दें, तो मेरे पास में उस एक चीज़ के 2 आंसर्स होंगे, सो दैट आई कैन
easily write in the exam or easily answer for the question or I can gain more knowledge. तो नहीं पता है तो at least tell me at least. You could, I don't know, I'm just really very sad today because I'm trying very hard to be with you all people. Really, I'm trying very hard. But anyways, I don't want to scold you because मुझे पता है ये क्लासेस थोड़ी सी होती हैं जहाँ पर you are not kid anymore. Fine. Okay, so causes are vessel wall embolus. The difference between an embolus और thrombus is जो थ्रोम्बस होता है वो एक जगह पे स्टैग्नेट हो जाता है, वो एक जगह पे स्टैटिक हो जाता है, दैट इज़ नॉट मूवेबल. जहाँ पर वो बनता है उसी जगह पर वो एनलार्ज होता रहता है. बट व्हेन दिस थ्रोम्बस गेट्स ट्रांसफर्ड, वो मूवेबल हो जाता है, तो वही थ्रोम्बस इज नोन एज एम्बोलाई. एम्बोलाई इज मूवेबल एंड थ्रोम्बस इज स्टैटिक एट अ प्लेस. समझ आ गया? Yes, ma'am. Okay. Then causes are vessel wall embolus, cardiac disorders में आते हैं आपका mitral valve stenosis, mitral valve prolapse, calcified mitral annulus, ventricular aneurysm, arterial or ventricular clot, atrial septal defect, then intracranial artery thrombus, aortic arch atherosclerosis, hypotension with carotid artery stenosis. So these are the causes. Then comes to the type of stroke. What are the type of stroke? There are two types of strokes: ischemic cardiovascular accidents and hemorrhagic cardiovascular accidents. So first what we are dealing with is ischemic cardiovascular accidents. So ischemic CVA is a result from inadequate blood flow to the brain from partial or complete occlusion of an artery. 80% of the cases are of ischemic stroke. तो एक ischemic stroke होता है हमारा, एक hemorrhagic shock होता है. Normally we can call is shock. Fine. तो ischemic shock and hemorrhagic shock. तो what is ischemia? Ischemia means decreased blood supply to the any part of the body, and ischemic stroke is known as decreased blood supply due to partial or complete occlusion of an artery which is supplying to the brain, and that artery is carotid artery. So it results from inadequate blood supply to the brain from partial or complete occlusion of the carotid artery, and 80% of the cases are of ischemic stroke only. Fine. तो type of ischemic strokes are, तो जो अभी डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये होता है कि ऑलरेडी ब्लड सप्लाई कम हो रहा है. अब ब्लड सप्लाई कम क्यों हो रहा है? ब्लड सप्लाई कम होने के दो रीजंस हैं. एक तो इस्चीमिया एंड सेकेंड इज हैमरेज. अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, इंजरी हुआ है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, सपोज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट किसी का हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ब्लड लॉस होगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में आ जाएगा, हेमरेजिक शॉक. फाइन. जो एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हेमरेजिक शॉक होता है पेशेंट को. बट अभी इंटरनली बॉडी इज अफेक्टेड ड्यू टू प्लेक और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस और ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्लूजन इन द आर्टरीज. यानी कि हमारे जो ब्रेन को कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर रही है ब्लड, उसके अंदर किसी भी टाइप का क्लूजन है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, एम्बोलाई है, या प्लाक फॉर्मेशन है, या फिर कैल्सिफिकेशन है, या रप्चरिंग है, एन्यूरिज्म है. दीज आर द कॉजेज फॉर occlusion. These are the causes for occlusion. Occlusion means stoppage. So hemorrhagic shock means patient is losing blood or patient is losing fluid outside the body, and ischemic shock means patient's body is internally affected by occlusions. So these are the 80% cases are of ischemic stroke. There are 80% cases are of ischemic stroke. Then type of ischemic strokes are, फर्स्ट इज थ्रोम्बोटिक एंड सेकेंड इज एम्बोलिक. इसीलिए मैं आपको पूछ रही थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रोम्बस एंड एम्बोलाइज. यहाँ पर आता है हमारा इस्चीमिक स्ट्रोक के टाइप्स, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड एम्बोलिक स्ट्रोक.
Thrombotic means it occurs from an injury to the blood vessel wall and formation of a blood clot. Most common causes are hypertension and diabetes mellitus. तो it is a formation of it occurs from an injury to the blood vessel. जैसे आपको कट इंजरी हुआ, आप खाना बना रहे थे, आप सब्जियां काट रहे हो, सब्जी काटते काटते सडनली फिंगर में नाइफ लग गया, फिंगर कट गया, तो एक कट इंजरी हो गया आपको. तो कट इंजरी होने के बाद थोड़ी देर तक आप उसको ऐसे ही पकड़ के रखोगे, थोड़ी देर के बाद में ब्लड फ्लो जो है वो बंद हो जाएगा. ब्लड फ्लो बंद क्यों हुआ? फर्स्ट रीज़न था आपका ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि एक टाइम के बाद में ब्लड अपने आप ही क्लॉट होना शुरू हो जाएगा. सेकेंड था आपका प्लेटलेट एग्रीगेशन. जिस एरिया में कट हुआ है उस एरिया में प्लेटलेट्स हमारे डिफेंसिव सिस्टम का काम करती हैं, तो प्लेटलेट्स विल कम एंड एक्यूमुलेट ओवर द कट. तो जहाँ पर कट हुआ है वहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो जाएंगी, एंड व्हेन दे विल बी एक्यूमुलेटेड ओवर द कट एरिया, दैट एरिया विल लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो आउट ऑफ द बॉडी. यानी कि वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा, वहाँ पर प्लेटलेट एक्यूमुलेशन हो जाएगा. ड्यू टू प्लेटलेट एक्यूमुलेशन ब्लड सप्लाई विल बी कट ऑफ, ब्लड सप्लाई विल बी डिक्रीज्ड. फाइन. तो ये होता है हमारा थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, यानी कि इट अकर्स फ्रॉम एन इंजरी टू द ब्लड वेसल वॉल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट. फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द ब्लड वेसल विल लीड्स टू इस्चीमिया, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट थोड़ा सा बड़ा होते ही जो ल्यूमन है, जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो कम हो जाएगा. हमारे ब्लड वेसल्स क्या है? जस्ट पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर से ब्लड फ्लो होता है. जैसे नॉर्मली हम अपने घरों में पाइप्स यूज़ करते हैं वाटर रिटेंशन के लिए, तो अगर किसी पाइप के अंदर थोड़ा सा भी कुछ फंस गया तो क्या होता है, आगे पानी जाना या तो स्लो हो जाता है या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है. अगर उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ चला गया पाइप के अंदर जिसकी वजह से उसमें ऑक्लूजन हो जाएगा, तो पता चल रहा है कि पीछे से पानी पूरा चल रहा है लेकिन पानी बाहर ही नहीं आ रहा है पाइप में से. इसका मतलब क्या है कि पाइप के अंदर कुछ ना कुछ ऑक्लूसिव है, पाइप के अंदर कुछ ना कुछ अटक गया है. तो सेम उसी तरीके से होता है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स आर एक्टिंग एज अ पाइप्स इन द बॉडी विच सप्लाइज द ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स. तो अगर उस पार्ट के अंदर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है तो उसका ल्यूमन कम हो जाएगा, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं उनका ल्यूमन कम हो जाएगा. एंड ड्यू टू डिक्रीज ल्यूमन और ड्यू टू डिक्रीज कैविटी इन द ब्लड वेसल, द ब्लड विल फ्लो very slow or there will be complete occlusion. Fine. So this is thrombotic stroke, and thrombotic stroke are mainly caused by hypertension and diabetes mellitus. Then second आता है आपका embolic stroke. It occurs when a blood clot breaks loosen, travel through the bloodstream and lodges in the artery in the brain. यानी कि जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था वो एक ही जगह पे है, उसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, तो दैट इज नोन एज थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक. बट अभी प्रॉब्लम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में था. डाइजेस्टिव सिस्टम में पैप्टिक अल्सर्स हो गए हैं. पैप्टिक अल्सर्स की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सेक्रीशन हो रहा है एंड ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है. तो अभी क्या होगा, फ्रॉम द ब्लड क्लॉट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज़ ट्रैवलिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और सडनली वो जाके ब्रेन के आर्टरीज में स्टक हो गया है. तो प्रॉब्लम कहाँ थी आपकी? डाइजेस्टिव सिस्टम में. वहाँ थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था, वहाँ ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ था, बट वो वहाँ से लॉज आउट करके, वो वहाँ से ब्रेक डाउन होकर वो पूरा ट्रैवल करके ब्लड वेसल्स में ट्रैवल करके वो ब्रेन के आर्टरी यानी कैरोटिड आर्टरी में आके स्टैग्नेट हो गया. व्हेन इट गेट स्टैग्नेट इन द कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी इट विल लीड्स टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन सेल्स. तो दिस इज एम्बोलिक स्ट्रोक, यानी कि problem is somewhere else and affection is somewhere else, that is embolic stroke. तो आपके दो टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं, ischemic and hemorrhagic. Then ischemic is also of two types, thrombotic stroke and embolic stroke. Then comes to the clinical manifestations. क्योंकि this condition is associated with brain and brain control all the functions in the human body from head to toe. हमारी बॉडी में जितने फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन हो, विजन हो, स्पीकिंग हो, शाउटिंग हो, आपका कार्डियोवैस्कुलर का वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी कंट्रोल हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में मेटाबॉलिज्म हो, आपका ब्लैडर एंड बवल कंट्रोल हो, नर्वस सिस्टम कंट्रोल हो, आपका स्पाइनल जो cranial nerve का कंट्रोल हो, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ब्रेन ओनली.
Fine. So if the brain gets affected or any part of the brain gets affected, it will affect the body's function. आपके दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, तो द अफेक्टेड साइड विल अफेक्ट द अफेक्टेड साइड ऑफ द बॉडी. फाइन. तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर, first is visual field defect, because brain have optic nerve and optic nerve have the function of visual normal visuality. So if optic nerve is damaged or if optic nerve is getting affected, तो क्या क्या changes होंगे? visual field deficit होगा patient को. तो visual field deficit में क्या क्या होगा? hemianopia, loss of half visual field. आपको visual field पता है क्या होता है? विजुअल फील्ड पता है कैसे असेस करते हैं? यस और नो? नो. ओके ओके, डू एन एक्टिविटी विद मी. जहां पर भी आप बैठे हो वहां पर क्या करो, अपनी आंखों के सामने एक पेन रखो. मेरे साथ साथ करो ये एक्टिविटी, ठीक है? पेन हो गया आपकी आंखों के सामने? पेन हो, पेंसिल हो, एनी ऑब्जेक्ट यू कैन टेक. बस आपका कंसंट्रेशन वो आपकी आंखों के सामने जो पेन है उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है? अभी आप सिर्फ पेन को देख रहे हो, लेकिन व्हाट इज द विजुअल फील्ड कि आप अपने विदाउट मूविंग योर आईज आप अपने राइट साइड में भी देख रहे हो और लेफ्ट साइड में भी देख रहे हो. आपको सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन पेन के ऊपर है, फिर भी आपको ये पता चल रहा है कि आपके राइट साइड में क्या है और आपके लेफ्ट साइड में क्या है. ब्लर्ड है बट यस यू नो कि क्या है. फाइन. दिख रहा है इतना? यस मैम. तो दिस इज नोन एज विदाउट मूविंग योर आईज, without moving your pupil, you are understanding what is in the right side, what is in the left side. That is known as visual field. तो जब आप सीधे देख रहे हो और आप सपोज आप क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप बोर्ड की तरफ देख रहे हो, लेकिन आपके गेट से कोई भी पास हुआ है तो आप देख पाते हो ना कि कोई पास हो रहा है, मतलब कोई जा रहा है. आपका कंसंट्रेशन कहाँ है? ब्लैक बोर्ड के ऊपर, जहाँ आपका पीपीटी चल रहा है या जहाँ पे भी आपका प्रोजेक्टर चल रहा है, आपका कंसंट्रेशन उस तरफ है. बट आप अपने राइट साइड में और आप अपने लेफ्ट साइड में इजीली विजुअलाइज कर सकते हो कि समथिंग इज मूविंग और समथिंग इज हैपनिंग विदाउट मूविंग योर आईज. यू कैन नॉट आइडेंटिफाई ऑल द टाइम्स कि कौन जा रहा है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन जा रहा है, कौन बात कर रहा है, क्या हो रहा है, बट आप उसका 50% देख सकते हो कि येस समथिंग इज गोइंग और समवन इज गोइंग, समवन इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. तो दैट इज नोन एज विजुअल फील्ड. तो हेमिएनोपिया मीन्स लॉस ऑफ हाफ विजुअल फील्ड. वो राइट साइड में भी हो सकता है और लेफ्ट साइड में भी हो सकता है. मतलब जिस साइड में आपका हेमिस्फीयर अफेक्टेड है उस साइड का विजुअल फील्ड विल बी लॉस्ट. आपके आंखों में सिर्फ एक साइड का आई पूरा वर्क करेगा, एक साइड का आई सिर्फ और सिर्फ सामने देख सकता है, वो आपके साइड्स में नहीं देख सकता है. तो दिस इज नोन एज हेमिएनोपिया. देन लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. अब पेरिफेरल विजन का मतलब होता है कि पेशेंट वोंट बी एबल टू सी इन द नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है उनको. एंड देन द ऑब्जेक्ट, द पेशेंट लुकिंग टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, और जो उनके बॉर्डर्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसके बॉर्डर्स का लॉस हो जाएगा. मतलब बॉर्डर्स, वो कैन नॉट आइडेंटिफाई द बॉर्डर्स. तो दैट इज लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन. देन डबल विजन. पेशेंट जब एक ऑब्जेक्ट को देखता है तो देयर विल बी टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब है तो वो एक ही ऑब्जेक्ट लेकिन पेशेंट को वो दो दिखाई दे रहे हैं. दैट इज नोन एज डबल विजन. Then next is hemiparesis. Hemiparesis means weakness of the face, arm and leg. Hemiplegia means paralysis of the face, arm and leg. The difference is hemiparesis means weakness and paralysis means plegia means paralysis. मतलब the function is completely lost. Paresis means there is only weakness, patient काम करेगा, थोड़ा slow काम करेगा पहले से, but there is function. And paralysis plegia means complete loss of function. Then ataxia.
मैं आपको ऑलरेडी डिसऑर्डर्स पढ़ा चुकी हूँ, मूवमेंट डिसऑर्डर्स. तो एटेक्सिया मीन्स डिफेक्टिव मसल कोऑर्डिनेशन. देन डिसआर्थरिया ऑल्सो डिफिकल्टी फॉर्मिंग वर्ड्स. पेशेंट वोंट बी एबल टू फॉर्म वर्ड्स, उन्होंने क्या बोलना है. देन डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन swallowing. Paresthesia means numbness or tingling sensation of extremities on the opposite side of the lesion in hemisphere. तो हमारे जो ब्रेन होता है उसमें क्या हेमिस्फेयर जो होता है उसका ऑपोजिट फंक्शन होता है. जैसे हमारा राइट साइड का जो हेमिस्फीयर है दैट कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी. तो पैरास्थेसिस मीन्स numbness or tingling sensation, needle pricking sensation of extremities on the opposite side of lesion in hemisphere. So if the thrombus or if the blood supply in the brain is in right side, the left side is affected. If the brain supply is in less in left side, it will affect the right side of the body. So paresthesia means numbness or tingling sensation in the extremities on the opposite side of lesion. Then expressive aphasia. Expressive aphasia means unable to form words that are understandable. Patient words बोलेंगे but वो क्या बोल रहे हैं दैट इज नॉट बीइंग अंडरस्टैंडिंग. वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए बताओ कुछ भी वर्ड जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में नॉर्मली बोलते हैं बट अफेसिया के पेशेंट्स अफेक्ट कर जाएंगे. कोई भी वर्ड्स हैं जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने वर्ड्स को प्रॉपर क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई अफेसिया एक्सप्रेसिव अफेसिया का पेशेंट है तो दे आर asking you, they are telling you something but what they are telling is not being understandable, तो unable to form words, they are unable to form words. Suppose एक पेशेंट ने बोलना है कि I am hungry बट अभी पेशेंट बोल रहा है आई एम इज अंडरस्टैंडेबल, बट हंग्री के लिए वो कुछ भी वर्ड बोल सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं. दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, बट दे आर नॉट एबल टू फॉर्म दैट वर्ड. हंग्री की जगह वो हंगेरी बोल सकते हैं, एंग्री बोल सकते हैं, कुछ भी. मतलब द पेशेंट इज अनेबल टू फॉर्म वर्ड दैट आर अंडरस्टैंडेबल. दैट इज नोन एज एक्सप्रेसिव अफेसिया. And receptive aphasia means unable to understand the words which are being spoken. आप क्या बोल रहे हैं वो पेशेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, तो दैट इज रिसेप्टिव अफेसिया. Expressive aphasia means unable to form the words which are being understandable. Receptive aphasia means unable to understand the words which are being spoken. And there is one another aphasia that is double, यानी कि पेशेंट इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली और अंडरस्टैंड प्रॉपरली. बोथ द कंडीशंस आर प्रेजेंट इन द पेशेंट. तो एक क्या है आपका एक्सप्रेसिव अफेसिया, सेकेंड है आपका रिसेप्टिव अफेसिया एंड थर्ड इज आपका डबल अफेसिया. मतलब पेशेंट इज नॉट एबल टू फॉर्म द वर्ड्स एंड पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग और व्हाट द अदर पर्सन इज टेलिंग यू. देन नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स हैं आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन, यानी कि पेशेंट किसी भी काम को करने में ज़्यादा अटेंटिव नहीं होगा, उनका जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत जल्दी हो जाएगा. तो डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन. जैसे आपकी नॉर्मली क्लासेस होती हैं 45 to 1 hour, मैक्सिमम जो ह्यूमन ब्रेन है वो 1 hour तक अटेंटिव रहता है. 1 hour के बाद में वो डिस्ट्रैक्ट होना शुरू कर देता है. फाइन. तो डिक्रीज अटेंटिव स्पैन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में 45 to 1 hour इज इसेंशियल फॉर इज ओके फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन वर्क. बट जो CVA के पेशेंट्स होते हैं या जिनको इस्चीमिक स्ट्रोक हुआ है उनका वो सिर्फ 10 मिनट के लिए किसी चीज़ को सुन पाएंगे, उसके बाद वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं. फिर अगेन वो थोड़ा सा अटेंशन गेन करने की कोशिश करते हैं, अगेन फिर वो इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे. तो डिक्रीज्ड अटेंशन स्पैन, देन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, देन ऑल्टर्ड जजमेंट, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल लायबिलिटी. पेशेंट्स आर वेरी इमोशनल, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेके इमोशनल हो, इवन फ्लावर्स को लेके इमोशनल हो जाते हैं.
कि फ्लावर्स, अगर आप उनको फ्लावर्स दे के आए हो तो वो इमोशनल हो जाएंगी, आपने फ्लावर्स क्यों तोड़े, आपने अच्छे खासे ये पेड़ों में लगे हुए थे, पौधों में लगे हुए थे, क्यों तोड़ के मुझे दे दिए। तो दे आर वेरी इमोशनल, दे कैन बी emotional for non-usual things, fine. So there will be emotional liability. Then decreased tolerance of stressful situation, depression, withdrawal means patient अपने आप को आइसोलेट फील करेगा, आइसोलेशन फील होगा पेशेंट को, और ड्यू टू आइसोलेशन उनके अंदर जब ये फीलिंग आ जाएगी कि आई एम आइसोलेटेड, आई एम नॉट लाइक नॉर्मल इंडिविजुअल्स, तो वो क्या करेगा, अपने आप को सोशल इंटरेक्शन से विदड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। वो अपने आप को पार्टीज़ में नहीं लेके जाएंगे, या वो पार्टी सेलिब्रेशंस में जाना बंद कर देंगे, फैमिली इंटरेक्शंस बंद कर देंगे, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज़ नोन एज विदड्रॉवल, फाइन. So then fear and anger, feeling of isolation. So these are the sign and symptoms of ischemic stroke. तो क्या क्या है, visual field disturbances, hemiparesis, hemiplegia, ataxia, dysarthria, dysphagia, paresthesia, expressive aphasia, receptive aphasia, short and long term memory loss, decreased attention span, impaired ability to concentrate, altered judgment, loss of self-control, emotional liability, decreased tolerance to stressful situation, depression, withdrawal, fear and anger, and feeling of isolation. So these are the clinical signs and symptoms of patient who are affected with ischemic stroke. Then comes to the diagnostic evaluations. हम क्या क्या diagnosis करके patient को identify करेंगे. So diagnostic evaluation includes, first and important is history collection. तो history collection में we have to collect past medical history, past surgical history, present medical history and present surgical history. अब सर्जिकल हिस्ट्री में या मेडिकल हिस्ट्री में वी हैव टू आस्क पेशेंट कि पहले कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है, पहले किसी भी तरीके का इस तरीके का स्ट्रोक तो नहीं हुआ है, या पेशेंट को किसी और तरीके का ब्लड लॉस तो नहीं होता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो नहीं होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का तो कोई चांसेस नहीं है, या किसी भी तरीके से पेशेंट को किसी भी तरीके का एथेरोस्क्लेरोसिस तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, पेशेंट को कोई और डिजीज़ कंडीशन तो नहीं है, ब्लड कैंसर तो नहीं है, ये सारे पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में आएंगे. देन फैमिली हिस्ट्री में भी यू हैव टू आस्क द पेशेंट कि फैमिली में कोई डायबिटिक तो नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव तो नहीं है, अस्थमैटिक तो नहीं है, या फिर किसी भी और तरीके के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तो नहीं है फैमिली में, या जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है किसी भी चीज़ की, किसी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जेनेटिक हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट्स के अंदर. तो दीज आर द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन एंड प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्शन. देन मेडिकेशंस कोई मतलब पेशेंट ड्रग अब्यूज़ तो नहीं करता था, अल्कोहलिक तो नहीं है पेशेंट, या फैमिली में किसी तरीके के ड्रग एलर्जीज तो नहीं होते हैं किसी को भी, या पेशेंट के अंदर किसी भी तरीके का ड्रग एलर्जी है क्या. तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू आस्क फॉर द मेडिकेशन हिस्ट्री. देन न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, पेशेंट वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, बिकॉज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन आर ऑल्सो द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बॉडी कंटेंट्स, बॉडी न्यूट्रिशन. फाइन. तो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री यू हैव टू आस्क कि पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, या पेशेंट का डाइटरी इनटेक कैसा है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, व्हाट आर द थिंग्स दे प्रेफर, व्हाट आर द थिंग्स दे डोंट प्रेफर ईटिंग. सो these things includes in your nutritional history. Then cognitive perceptual history, पेशेंट का जजमेंट कैसा है, या वो दूसरों के साथ में किस तरीके से मिलते जुलते हैं, या किस तरीके की सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, या किस तरीके के फंक्शंस अटेंड करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनका इनसाइट कैसा है, या फिर वो काम किस तरीके से काम करते हैं या नहीं करते हैं, या उनका कोग्निशन किस तरीके का है, इमेजिनेशन, उनका क्रिएटिविटी, ये सब यू हैव टू आस्क इन द कोग्निटिव परसेप्चुअल हिस्ट्री. तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपने पास्ट हेल्थ हिस्ट्री कलेक्ट करना है, देन फैमिली हिस्ट्री, मेडिकेशन हिस्ट्री, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री एंड कोग्निटिव परसेप्चुअल हिस्ट्री. देन फिजिकल एग्जामिनेशन. आपने कल असाइनमेंट भी बनाया था ग्लासगो कोमा का, तो क्या क्या चीज़ें चेक करना है. ग्लासगो कोमा स्केल यू हैव टू चेक.
पेशेंट स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट कर रहा है, नॉन स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट कर रहा है, स्पीच के लिए रिएक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, प्यूपल डायलेटेशन कितना है, प्यूपल डायलेटेशन नहीं है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, these things comes under Glasgow Coma Scale. Then cognitive function में आएगा आपका स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द स्टिमुलस, पेशेंट ओरिएंटेड है या नहीं है टाइम पर्सन प्लेस के लिए, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, फिर इफ़ दे आर एबल टू स्पीक, इफ़ दे आर नॉट एबल टू स्पीक, डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, गेट डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, मूवमेंट डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, मसल टोन डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है, फिर ये सब आएगा आपका कोग्निटिव फंक्शंस में. देन मोटर फंक्शंस में आएगा आपका कि यू आर आस्किंग द पेशेंट टू रिफ्लेक्स, तो वो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यू आर आस्किंग द पेशेंट टू एक्सटेंड, वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्कमडोशन, देन रोटेशन, मूवमेंट, वो चल के दिखा रहे हैं या नहीं चल पा रहे हैं, तो दीज आर द मोटर स्किल्स और दीज आर द मोटर फंक्शंस. यू आर आस्किंग द पेशेंट टू मूव, तो वो मूव कर रहे हैं इजीली, and if they are not moving, so that has to be considered. So these are the physical examinations: Glasgow Coma Scale, cognitive functions and motor functions. Then comes to the lab investigations. अब lab investigations is very vast. तो lab investigations में क्या क्या करना है? CT scan, MRI, SPECT is single photon emission computed tomography. तो in SPECT there is a single photon emission, मतलब photons are used to take the computed tomography or CT scan. Then EEG, electroencephalogram. EEG is to be done to identify the nerve conduction in the brain, यानी कि जो nerves है, nervous system है, whether it is performing well or the wavelength of the nervous conduction or the transfer of one impulse from a nerve to the other nerve, उनका ट्रैवलिंग टाइम कितना है, कितना वो ट्रैवलिंग टाइम ले रहे हैं, कितनी जल्दी या कितना स्लो नर्व कंडक्शन हो रहा है, दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और नोन एज EEG. Then cerebral angiography is for detection of any kind of blockage. So there will be cerebral angiography. Then cerebrospinal fluid analysis, if there is any type of thrombus formation or clot present in the spinal fluid. Then cerebral blood flow measures, which is done by cerebral angiography and carotid angiography. तो ब्रेन के अंदर, cerebral area के अंदर कितना blood flow हो रहा है, that has to be monitored with the help of carotid angiography and cerebral angiography. तो it can be only measured with the help of carotid angiography and cerebral angiography, because it can identify the formation of clot, the size of the clot and the occlusion occur due to clot, कि कितना occlusion है, complete occlusion है या partial occlusion है. तो that is known as the cerebral blood flow measures, which is being done by cerebral angiography and carotid angiography. Then cardiac assessments में हम क्या करेंगे? ECG करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे, देन कार्डियक एंजाइम मॉनिटरिंग करेंगे, और उसके बाद आती हैं थोड़ी सी एडिशनल स्टडीज़. तो ये तो आपकी होंगी स्पेसिफिक स्टडीज़, जैसे आपका CT स्कैन हो गया, MRI हो गया, SPECT हो गया, EEG हो गया, सेरिब्रल एंजियोग्राफी हो गया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एनालिसिस हो गया, सेरिब्रल ब्लड फ्लो मेजर्स हो गया. ये these are the specific evaluations. ECG, chest X-ray and cardiac enzymes are specific evaluations. Then some additional studies में आएगा आपका CBC, complete blood count, prothrombin time, blood clotting time, then electrolyte level, because there is a reason called metabolic acidosis or metabolic abnormalities, metabolic disorders. तो what are the role of electrolytes? आपके क्लोराइड, बाइकार्बोनेट इज इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इफ देयर इज एनी इंक्रीज और एनी डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स एंड क्लोराइड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स. सो इफ देयर इज एनी चेंजेस इन द इलेक्ट्रोलाइट्स, इट विल लीड्स टू increased accumulation in the body or decreased accumulation in the body. Fine. So that's why we have to check for the electrolytes. Then blood glucose analysis, then renal and hepatic studies, RFT, KFT you have to do. Then lipid profile to identify the cholesterol level. Then ABG analysis.
ABG बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पेशेंट को हो रहा है या कॉज है पेशेंट के लिए metabolic acidosis and metabolic alkalosis. For that reason we have to perform arterial blood gas analysis, and arterial blood gas analysis will helpful to identify the bicarbonate level, pH level and buffer system, how it is maintaining and how it is not performing well. So this is the reason why we are performing ABG analysis, and ABG analysis is arterial blood gas analysis. तो आपके एडिशनल स्टडीज़ में आएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट दैट इज CBC, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड ग्लूकोज लेवल, रीनल एंड हेपेटिक स्टडीज, लिपिड प्रोफाइल एंड ABG एनालिसिस. Then comes to the management. It includes 3 type of managements: pharmacological management, surgical management and nursing management. तो pharmacological management include your platelet inhibiting medications. Platelet inhibiting medications. Why we are giving platelet inhibition? Because platelets are functioning as the defense system in the body, and if there is any blood clot formation, if there is any kind of inflammation, any kind of injury, platelets will gather there and it will form the clot. So to prevent the formation of clots, we are providing platelet inhibiting medications. Example is aspirin. It has to be provided 50 mg per day. Aspirin is the example for platelet inhibiting medications. That is aspirin 50 microgram per day or 50 mg per day. Then second is dipyridamole, fine, that is 40 mg per day. Dipyridamole, that is 40 mg per day. Then third is जो आपका थर्ड आएगा वो है टाइक्लोपिनिडीन, तो दैट इज ऑल्सो 400 mg पर डे, 400 mg पर डे. तो ये हो गया आपका प्लेटलेट इनहिबिटिंग मेडिकेशंस. देन आते हैं आपका थ्रोम्बोलाइटिक्स. सपोज पेशेंट को ऑलरेडी थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, तो नाउ वी हैव टू ब्रेक दैट थ्रोम्बस. तो थ्रोम्बोलाइटिक्स मीन्स, लाइटिक मीन्स ब्रेक डाउन. तो थ्रोम्बोलाइटिक्स के लिए हम TPA प्रोवाइड करते हैं, दैट इज 0.9 mg पर kg, 0.9 mg पर kg. देन आता है आपका सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट इंक्लूड your carotid just wait for 2 minutes please. Hello. Hello, am I audible? Yes ma'am. Okay, so in surgical management में what we are doing, carotid end arterectomy. Carotid end arterectomy means removal of the atherosclerotic plaque or thrombus from the carotid artery. तो जो हमारी carotid artery के अंदर plaque formation हो गया है, thrombus formation हो गया है, that has to be removed and the surgery is known as carotid end arterectomy. Carotid end arterectomy means surgical removal of the plaque formation in the carotid artery. So these are the pharmacological management and surgical management. Now comes to the nursing management. तो nursing management में क्या क्या करेंगे हम? First is assess the level of consciousness or responsiveness. You have to assess the patient कि patient conscious है या unconscious है, and if patient is conscious तो how much he is or she is responsive towards the speech, towards the stimuli. अगर पेशेंट स्टिमुलाई के लिए रिएक्टिव है तो हाउ मच ही इज रिएक्टिंग, और अगर पेशेंट स्पीच के लिए रिएक्टिंग है तो हाउ मच द पेशेंट इज रिएक्टिव टुवर्ड्स द स्पीच. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है. इफ पेशेंट इज अनकॉन्शियस तो दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव, एंड इफ पेशेंट इज कॉन्शियस then how much patient is responsive towards the speech and stimuli. Then presence of any voluntary or involuntary movement of the extremities. You have to check for the voluntary and involuntary movements of the extremities, because पेशेंट का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है, पेशेंट का नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, एंड ड्यू टू
abnormal nervous system functioning, there will be movement disorders, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाए थे. So if there is movement disorder abnormality, if there is nervous system abnormality, there will be definitely presence of movement disorders. So you have to check for the voluntary or involuntary movement of the extremities. Fine. Then check for muscle tone, बॉडी पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ द हेड. आपको ये सब चेक करना है कि पेशेंट का मसल टोन किस तरीके का है. यानी कि पेशेंट को आप बोलोगे क्योंकि आपने रेगुलरली पेशेंट को एक्सरसाइजेज भी करानी है, पेशेंट का फिजियोथेरेपी भी होना है, तो इसीलिए यू हैव टू चेक फॉर द मसल टोन. यू हैव टू आस्क द पेशेंट फ्लेक्शन करो, एक्सटेंशन करो, रोटेशन करो, देन मूवमेंट करो, हेड मूवमेंट करो, चल के दिखाओ. तो ये सब यू हैव टू चेक फॉर द पेशेंट फॉर मसल टोन, बॉडी पोस्चर. वो बैठ रहे हैं तो कैसे बैठते हैं, ये एक साइड में टिल्टिंग तो नहीं है, हेड टिल्टिंग तो नहीं है, बैक उनका कर्व तो नहीं है, वो किस पोस्चर में बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, लेटे हुए हैं. तो दैट यू हैव टू चेक फॉर द मसल टोन, बॉडी पोस्चर एंड पोजीशन ऑफ द हेड. देन स्टिफनेस और फ्लैसिडिटी ऑफ द नेक. फ्लैसिडिटी मीन्स मूवमेंट, स्टिफनेस मीन्स अगर सपोज कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सो के जैसे ही सुबह में सो के उठते हैं या आफ्टरनून में थोड़ा सा नैप लेते हैं, नैप लेने के बाद में सडनली यू फील पेन इन द नेक, तो वो स्टिफ हो जाती है एक तरफ से. क्यों? क्योंकि अगर सोते सोते आप बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में चले गए तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है वो एरिया में थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा मूव नहीं करते हो. जो लोग डीप स्लीप में सोते हैं उनका बॉडी मूवमेंट थोड़ा कम होता है, एंड ड्यू टू डिक्रीज बॉडी मूवमेंट वो एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टिफनेस हो सकती है. तो देयर विल बी स्टिफनेस और फ्लैसिडिटी ऑफ द नेक. देन आई ओपनिंग, साइज ऑफ द प्यूपिल, pupillary reaction towards the light. तो you have to check for the consciousness, unconsciousness, and if patient conscious तो उनका आई ओपनिंग चेक करना है कि पेशेंट आई ओपन कर रहा है क्या, लाइट के लिए रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है. क्योंकि जब आप लाइट सोर्स प्रोवाइड कराते हैं आईज में तो प्यूपिल विल डायलेट, प्यूपिल विल कॉन्ट्रैक्ट. So you have to check for the eye opening and check for the pupillary reaction and size of the pupil. Then color of the face, extremity, temperature and elasticity. You have to check for the skin also कि कलर कैसा है, कलर चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई पेशेंट को साइनोसिस भी हो सकता है. साइनोसिस अगर पेशेंट को होगा तो पेशेंट की बॉडी का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को. तो यू हैव टू चेक फॉर द कलर ऑफ द फेस, एक्सट्रीमिटीज़, टेम्परेचर एंड इलास्टिसिटी. पेशेंट का टेम्परेचर वार्म तो नहीं लग रहा है, स्किन कोल्ड तो नहीं लग रहा है, या फिर ह्यूमिड तो नहीं लग रहा है. तो ये दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू चेक. देन क्वालिटी एंड रेट ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन. डीप रेस्पिरेशन हो रहा है, शैलो रेस्पिरेशन हो रहा है, डीप पल्स फील हो रहा है, शैलो पल्स फील हो रहा है, या थ्रेडी पल्स फील हो रहा है. यू हैव टू चेक फॉर द वाइटल साइंस ऑल्सो. देन एबिलिटी टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड. यू हैव टू चेक फॉर द स्पीकिंग ऑल्सो कि पेशेंट अपने वर्ड जब उनको कुछ चाहिए या वो बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं. अगर वो बोल रहे हैं बट व्हाट इज़ द वर्ड दे आर यूजिंग वो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट पेशेंट आस्किंग फॉर. So you have to check for the ability to speak and understand. Then input and output charting करना है आपने. You have to check for the bleeding also कि patient को internal external bleeding तो नहीं हो रहा है. Then maintenance of blood pressure. These are the nursing management you have to maintain. क्या क्या है nursing management में? Assess the level of consciousness or responsiveness. Then presence of any voluntary and involuntary movement of the extremities. Then check for the muscle tone, body posture and positioning of the head. Then stiffness or flaccidity of the neck. Then you have to check for the eye opening, size of the pupil and pupillary reaction towards the light source. Then color of the face, extremities. Then temperature and elasticity of the skin. Then quality and rate of the pulse and respiration. Then ability to speak and understand. Then you have to maintain the IO charting, that is input output charting. Check for any type of bleeding, internal and external. Then maintenance of the blood pressure. So these things you have to check in nursing management. So this is your ischemic stroke or ischemic cardiovascular accident. Next class में we will deal with hemorrhagic shock or hemorrhagic cardiovascular accident. Fine.